Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we shall discuss NTA JEE Main Test number 92 chemistry paper. Today is 19th of August. Let's try to analyze how the test paper was and what score can be considered good in this test paper. Let's begin. The first question that we have, if lambda is C2 N2 square by N2 square minus 2 square for Balmer series, what is the value of C2? So here we will have to apply Rydberg's equation. Balmer series means the final energy level would be 2. Rydberg's equation for hydrogen atom, we will have to assume that the atom is hydrogen. The equation is 1 by lambda is equal to R 1 by N1 square minus 1 by N2 square. So N1 square is 2 square, N2 square can be any level above N is equal to 2. On proceeding further, we get N2 square minus 2 square upon 4 times N2 square. On the right hand side, taking reciprocal, we have lambda is equal to 4 by R N2 square upon N2 square minus 2 square. Now this equation is in the same form in which the equation has been given in the question. On comparing the two equations, we can very well see that C2 is 4 by R. Looking at the options, we should mark option A. Although it must be said that there is a difference between R and RH. RH is actually Rydberg energy, which is 13.6 electron volt, and R is Rydberg's constant, which is 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse. So there's difference between the two symbols, two values, but still, given the options, we have to mark A. But there is limitation in this question, there is demerit in this question. The option should have been R in place of RH. Coming to the second question, which formula does not correctly represent the bonding capacity of the central metal involved? So here definitely we'll have to look at the options, then only we can judge the answer. First option looks correct. The bonding looks correct. फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है फॉस्फोरस ने. तो फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है PH3 में, उसके ज़रिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. Structure, third is also correct structure. It represents the structure of nitric acid molecule. Second structure represents the structure of OF2 oxygen difluoride. So A, B, C are correct. If we look at the fourth option, we find that there are 5 bonds around carbon atom, which means 10 electrons in the valence shell. Carbon is a second period element, can only accommodate 8 electrons in its valence shell at maximum. 10 electrons for carbon is impossible in the valence shell. So this is an incorrect structure and this is what we have to mark. Second question ka answer D. Coming to the third question, we are given 4 compounds and each of them were dissolved in water to make 0.01 molar solution. We have to make the correct order of the increasing conductivity in solution. So conductivity will depend on the total number of ions produced upon dissolution. Total number of ions per unit volume. If there are more number of ions per unit volume, then the conductivity would be higher. Also, the charge of ions is also important. So if we judge one by one, this first compound is actually like this. We have a cation with plus 4 unit of charge and we have 4 anions. So we have 5 ions per formula unit. 5 ions per formula unit. Similarly, in the second case, the compound is CrNH3 whole 6, 3 plus. This is the cation and we have 3 chloride ions. So there are 4 ions per formula unit. In the third given compound,
It has coordination number of 4 around the metal atom, and there is +3 unit of charge on the cation. There are 3 chloride ions outside the coordination sphere. Oh, it must be an octahedral complex. And if it is an octahedral complex, then it would be something like this: CONH3 whole 4, Cl2 and Cl. So there is 1 cation and 1 anion, 2 ions per formula unit. Similarly, in the fourth case, we have 2 potassium ions, and 1 anion. That means 3 ions per formula unit. So more number of ions per formula unit will imply higher conductivity. So highest conductivity should be for PtNH3 whole 6 Cl4. Highest conductivity in aqueous solution. And lowest conductivity should be for CONH3 whole 4 Cl3, which is producing only 2 ions per formula unit. Lowest conductivity in its aqueous solution. Accordingly, we should look at the options. PtNH3 whole 6 Cl4 should be at first position, and CONH3 whole 4 Cl3 should be at the last position. This we can see in option 3. Third option should be correct, right? So third question का answer C. Coming to fourth question, which graph correctly correlates E cell as a function of concentrations of the cell for different values of M and M prime. M and M prime are the concentrations of cupric and zinc ions respectively. So on the x-axis we have log Zn2 plus upon Cu2 plus. On the y-axis we have E cell. In this question, definitely we have to make use of the Nernst equation. E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log Q. This is the Nernst equation. And for Daniell cell, E naught cell value is 1.10 volts. This we should remember. N factor is 2. And in the log we have Zn2 plus concentration upon Cu2 plus concentration. So this is X, this is Y, and this equation is fitting in the form of Y is equal to mx plus C. So this 1.10 volts is the Y intercept. Also, we must be able to see that the slope is negative. There is a fixed slope, but that slope is negative. Now look at the options. Y intercept should be 1.10 volts. यहाँ पर जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो 1.10 वोल्ट दिखाया हुआ है, ये डेफिनेटली आंसर नहीं है. सेकेंड वाले में y इंटरसेप्ट 1.10 वोल्ट है और इसका स्लोप भी नेगेटिव है. स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. बाकी ऑप्शंस भी आप देख लीजिए. सी में तो स्लोप 0 दिख रहा है, इट इज़ डेफिनेटली नॉट करेक्ट. डी में 2 तरह के स्लोप्स दिख रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट. तो आंसर है बी. कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स LiAlH4. तो यहाँ पर कंसर्न ये है कि हाउ मच डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, on functional carbon. More is the delta positive charge on functional carbon, greater is the reactivity towards LiAlH4. क्योंकि LiAlH4 बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ है, क्योंकि इसके थ्रू बेसिकली हाइड्राइड आयन सप्लाई होगा और हाइड्राइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल है. अब आप यहाँ पर ये देखिए कि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है कार्बोनिल कार्बन के पास में. तो सेकंड और थर्ड केस में जो कार्बोनिल कार्बन है उसके पास में
N और O लगे हुए हैं और इनका जो लोन पेयर है वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज करेगा, ठीक है ना, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर को वीकर बनाएगा। इतना ही नहीं, नाइट्रोजन एक बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, नाइट्रोजन एक बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है देन ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकंड वाले स्ट्रक्चर में होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन बढ़ेगा, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इट विल बिकम लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स LiAlH4। जबकि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में इस तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है, इस कार्बन पर, फंक्शनल कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, सो इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन दैट वी हैव। तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और सेकंड की रिएक्टिविटी सबसे कम होनी चाहिए, थर्ड का नंबर बीच में होना चाहिए। इस तरह की बात हमें फोर्थ ऑप्शन में नज़र आ रही है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, अगेन वी हैव टू judge the products of a sequence of reactions. In the first reaction, we are treating the alcohol with H2SO4. Here one thing also should have been given, which is heating. It is imperative that we are heating the alcohol, then only a reaction can take place. And in this reaction, the alcohol will get dehydrated and converted into an alkene, cyclohexene, that is A. Then we are treating alkene with N-bromosuccinimide. N-bromosuccinimide के थ्रू allylic bromination होता है। After this allylic bromination, we will get an allylic halide. Then we are treating it with LiAlD4, which is essentially a source of D minus ion. D is an isotope of hydrogen, deuterium, and this D minus ion will basically do nucleophilic substitution in the substrate, and in place of bromine we will get deuterium. So this should be the final product which we can observe in the third option. Sixth question ka answer C. Coming to the seventh question. In the seventh question we are given an expression for delta TB, elevation and boiling point, and the symbols have their usual meaning. M1 is the molar mass of the solvent, and delta H, vaporization, is the heat of vaporization for the solvent. For dilute solution, the relation delta TB by delta M as M tends to 0. इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें एक डिमेरिट है, इसमें एक कमी है, और वो कमी ये है कि इसमें न्यूमरेटर में M1 के साथ स्मॉल m भी होना चाहिए। मोलैलिटी न्यूमरेटर में भी आएगी, मोलैलिटी फैक्टर विल कम इन न्यूमरेटर ऑल्सो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि जो मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट होता है उसका एक्सप्रेशन होता है RTB0² अपॉन डेल्टा H0 वेपराइजेशन टाइम्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड दिस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी टेकन इन किलोग्राम्स पर मोल। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा Kb टाइम्स स्मॉल m अपॉन 1 प्लस m m1, राइट। डेल्टा TB को लिख सकते हैं TB माइनस TB0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। After that, the question is saying that m is tending to 0. If m tends to 0, TB minus TB0 will become equal to Kb times m. This is the expression that we are familiar with. Delta TB is equal to Kb times m. As m tends to 0, 1 plus m m1 will approximately become equal to 1. And now differentiate both sides. Differentiate both sides with respect to molality. Then you will get dTB by dm equal to Kb.
So rate of change of boiling point with molality is equal to molal ebullioscopic constant या molal boiling point elevation constant. ठीक है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन होगा. यहाँ पर एक स्मॉल m मिसिंग है. 7th क्वेश्चन का आंसर A होगा. बट क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन कम थी, ये भी मानना पड़ेगा. रियल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बोनस जाना चाहिए. कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, give the decreasing order of reactivity of the following compounds with HBr. HBr के साथ जो रिएक्शन होगी उसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इन्वॉल्व होगा. रिएक्शन विद HBr involves formation of कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा, रिलेटिवली स्टेबल, उतनी ही रिएक्टिविटी HBr के साथ ज़्यादा मानी जाएगी. तो फर्स्ट वाले केस में प्रोटोनेशन के बाद और लॉस ऑफ वाटर के बाद जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो तो सिंपली एक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है. सिमिलरली सेकंड वाले केस में भी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मिल रहा है, लेकिन उसको मिथाइल ग्रुप स्टेबलाइज करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के ज़रिए. इसका इफेक्ट +I एंड +H है. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से ये स्टेबलाइज करेगा. थर्ड वाले केस में we have a methoxy group attached at the para position, and again we are getting a benzylic carbocation, but इस benzylic carbocation को OMe ग्रुप स्टेबलाइज करेगा पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के ज़रिए. हालांकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा एंड दिस विल मेक द कार्बोकेटायन मोर स्टेबल. यहाँ पर कार्बन की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो पाएगी. और फोर्थ वाले केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा उसको OCH3 ग्रुप एक्चुअली डीस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन से OCH3 का रेजोनेंस इफेक्ट CH2 तक नहीं पहुंच पाएगा, सिर्फ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही पहुंच पाएगा, जो कि इस कार्बोकेटायन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी बढ़ाएगा. कार्बोकेटायन में वैसे ही कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उससे और इलेक्ट्रॉन अगर कोई विड्रॉ करेगा तो वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और भी कम करेगा. ठीक है, तो फोर्थ वाले केस में रिएक्टिविटी सबसे कम होगी और थर्ड वाले केस में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी. थर्ड सबसे आगे, फोर्थ सबसे पीछे. ये बात में सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में नज़र आ रही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर C होना चाहिए. कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, consider the following reaction and identify B. So first of all we are reacting it with per-acetic acid या peroxyacetic acid. अब ये जो peroxyacetic acid होता है, इसके साथ होने वाली रिएक्शन से इपॉक्साइड बनता है. तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक्चुअली इपॉक्साइड बनेगा. इस तरह का इपॉक्साइड. ठीक है, और उसके बाद अपन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग होगी. पहले तो एसिड का H+ जाकर इपॉक्साइड के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा. उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करे या फिर OH ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करे. अटैक जो होगा वो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पर होगा. एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग जो होती है वो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन से होती है. ठीक है ना. और ऐसी सिचुएशन में अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर नज़र आता है कि रिंग फॉर्मेशन की कोशिश की गई है, और ये रिंग फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब अपन अल्कोहल ग्रुप के OH के ज़रिए अटैक करवाएं. जब ये अटैक होगा तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, दिस ऑक्सीजन इंक्लूडेड, 5 मेंबर्ड रिंग बन पाएगी. साथ ही साथ एक CH2OH ग्रुप अलग भी हो जाएगा. ठीक है ना. दिस इज़ हाउ द रिंग विल लुक लाइक. एंड इफ वी लुक एट द ऑप्शंस we can clearly see that third option is correct. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें फोर्थ ऑप्शन में रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर CH2OH लगा हुआ है, जबकि हम देख रहे हैं कि एक कार्बन बीच में और है. ठीक है ना. तो आंसर है C. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, which
one is not correct according to Langmuir adsorption isotherm at very high pressure. At very high pressure. तो जो Langmuir adsorption isotherm होता है उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है x/m, उसका एक्सप्रेशन होता है AP अपॉन 1 + BP. ठीक है, एट वेरी हाई प्रेशर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A अपॉन 1 + P + B. ठीक है ना, P से ऊपर नीचे डिवाइड करके इस तरह से लिखा जा सकता है. एंड एज P टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/P टेंड्स टू 0 and x/m will approach A/B which is a fixed value, constant value. तो हाई प्रेशर पर जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस का अमाउंट है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करता है जिसको अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं. इस प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, और हम जानते हैं कि डेल्टा G0 होता है -RT ln K, और K की जगह यहाँ पर x/m है, डेल्टा G0 है डेल्टा H0 - T डेल्टा S0. x/m को अपन A/B भी लिख सकते हैं. यहाँ से अपन को ln A/B या ln x/m की वैल्यू मिल रही है, माइनस डेल्टा H0/RT प्लस डेल्टा S0/R. ये सारी चीज़ें हम ऑप्शंस को देखते हुए कर रहे हैं. हमें नज़र आ रहा है कि सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, और लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन की बातें केमिस्ट ऑप्शन के लिए होती हैं, ये बात भी सही है. जो बात सही नहीं है वो है डी. एट वेरी हाई प्रेशर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ ग्रेटर दैन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन. ये बात सही नहीं है. हाई प्रेशर पर तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम आ जाता है एंड रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्वल हो जाते हैं. तो ये फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. 10th का आंसर डी. 11th क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. यहाँ पर X जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है, और ये इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर आप एक बात समझिए, HF, HCl, HBr एंड HI, ये हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है. HI इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है. सबसे ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन HI का होता है, और HF एक वीक एसिड है, तो इट डिसोसिएट्स वीकली और पार्शियली इन वाटर. क्योंकि इसका डिसोसिएशन वाटर में कम होता है, तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद जो अट्रैक्शंस इस्टेब्लिश होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑन द अदर हैंड जब HI को हम डिसॉल्व करते हैं तो आयन डाइपोल अट्रैक्शंस इमर्ज करते हैं. आयन डाइपोल अट्रैक्शंस, और आयन डाइपोल अट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर होती है. H+ भी यहाँ पर ज़्यादा एक्सटेंट तक प्रोड्यूस होता है और इसको वाटर मॉलिक्यूल्स स्टेबलाइज करते हैं. तो HI के वाटर में डिसॉल्व करने पर आयन डाइपोल अट्रैक्शंस स्टैब्लिश होते हैं, और आयन डाइपोल अट्रैक्शंस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. क्योंकि HI को डिसॉल्व करने पर वाटर में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं. स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब
जो वेपर प्रेशर है HI एक्वस का वो कम है वेपर प्रेशर ऑफ HF एक्वस से, क्योंकि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शंस इस्टेब्लिश हुए हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। HI एक्वस का जो सोल्यूशन बनेगा या उसका जो एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर एजियोट्रॉप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर का डिक्रीमेंट यहाँ पर ज़्यादा है, वेपर प्रेशर कम है, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। HF एक्वस का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होगा। ये तो मैंने सिर्फ दो एक्सट्रीम सिचुएशंस दिखाई। एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये रहेगा, HI एक्वस का बॉइलिंग पॉइंट HBr एक्वस से, HBr एक्वस का HCl एक्वस से, HCl एक्वस का HF एक्वस से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए अपन को आंसर करना पड़ेगा। तो HI के सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, आंसर होना चाहिए B। कमिंग टू 12th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 पाथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो फर्स्ट वाले पाथ में आप देख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बनाया गया अल्काइल हैलाइड से, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया गया है। और सेकंड वाले पाथ में ब्रोमीन ग्रुप को या ब्रोमाइड ग्रुप को साइनाइड आयन से रिप्लेस करवाया गया है। यहाँ पर अपन ने SN2 रिएक्शन करवाई है, पर आप ये भी देखिए कि ये जो कार्बन जिस पर आपने SN2 रिएक्शन करवाई है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये SN2 रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। तो जो सेकंड वाली पाथ है वो फीजिबल नहीं है, पाथ 1 फीजिबल है। 12th क्वेश्चन का आंसर A होगा। कमिंग टू 13th क्वेश्चन, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2 इन OF2, ये बात तो सही है। यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है कंपाउंड्स में, ऑक्सीजन का +2 है। एसिडिक कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर, डाउन द ग्रुप जाने पर जो बाइनरी एसिड्स बनते हैं हाइड्रोजन के साथ उनकी स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। इसका कारण ये है कि डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है तो H+ का रिमूवल आसान हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट अगर अपन देखें, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्रीजेज इन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम सल्फर टू टेल्यूरियम टुवर्ड्स कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कार्बन और सल्फर तो फिर भी सिमिलर साइज्ड हैं, इनके ऑर्बिटल्स के साइज में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कार्बन और टेल्यूरियम बहुत ही डिसिमिलर साइज्ड एटम्स हैं, इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए इनकी आपस में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी तो कम है। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही हमें मार्क करना होगा। सल्फर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कैटिनेट वाइल ऑक्सीजन शोज दिस टेंडेंसी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। सल्फर ज़्यादा साइक्लिक कंपाउंड्स बनाता है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी सल्फर में ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट सही है। 13th का आंसर C। कमिंग टू 14th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन and rate constant for a chemical change having log T 50% versus log A curve as the following. So we must be knowing that half-life is proportional to initial concentration to the power 1 by 1 minus n, where n is the order of reaction, upon K. Half-life is always inversely proportional to rate constant and is proportional to A naught to the power 1 minus n, whereas n is the order of reaction. If we convert this proportionality into equation, we have to put a proportionality constant over here, C by K, A naught 1 by 1 minus n. Then take log both sides, it becomes 1 minus n log A naught plus log C by K.
if you look at the straight line, angle is with x-axis is 45 degree, that means tan theta is 1, slope is 1, y is equal to mx plus c के फॉर्म में आ रही है ये इक्वेशन, ठीक है, और ये जो m है ये 1 होना चाहिए, दैट मीन्स n मस्ट बी 0, सो दिस रिएक्शन मस्ट बी अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो अपन देख सकते हैं चारों ऑप्शंस में, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए. हालांकि जो रेट कांस्टेंट 1 बोला गया है वो 1 होना ज़रूरी नहीं है एक्चुअली. ये जो log c बाय के है इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पास कर रही है ऑरिजिन से, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. तो log c बाय के 0 है, इसका मतलब c बाय के की वैल्यू 1 है, जो ओवरऑल कांस्टेंट आ रहा है इसकी वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 होना ज़रूरी नहीं है. अगर आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद करें हाफ लाइफ का फॉर्मूला, तो वो होता है a नॉट बाय 2k, a नॉट बाय 2k. यहाँ से आप देखेंगे log t हाफ इज इक्वल टू log a नॉट माइनस log 2k आएगा, और इसको जब अपन ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो 2k की वैल्यू 1 होगी और k की वैल्यू 0.5 होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड में, ठीक है. 0.5 आ रही है k की वैल्यू वैसे तो, लेकिन अगर अपन 2k को ही एक ओवरऑल कांस्टेंट बोलें तो उसकी वैल्यू 1 ज़रूर आ रही है. एनीवेज इसमें कोई शक नहीं है कि आंसर अपन को ए मार्क करना है. कमिंग टू 15th क्वेश्चन. In the Hoops process for the refining of aluminium, the fused materials form 3 different layers and they remain separated during electrolysis also. Hoops process एक aluminium की refining की process है जिसमें electrolysis करी जाती है. इसमें 3 layers exist करती हैं, और ये जो 3 layers बनती हैं ये different densities के कारण बनती हैं, ठीक है ना. जो bottom layer होती है उसमें molten कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन होते हैं. जो मिडल लेयर होती है उसमें फ्लोराइड्स होते हैं मोल्टन फॉर्म में, फ्लोराइड्स होते हैं सोडियम के, बेरियम के एंड एल्यूमिनियम के. और जो अपर लेयर होती है उसके अंदर मोल्टन एल्यूमिनियम होता है. ये 3 लेयर्स बनती हैं और वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण बनती हैं. 15th का आंसर बी. कमिंग टू 16th क्वेश्चन. ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए. SO2 गैस जब डाइक्रोमेट आयंस के साथ रिएक्ट करती है तब एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है. डाइक्रोमेट आयंस एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं. SO2 जो है वो SO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है, और डाइक्रोमेट आयंस खुद Cr3+ में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो डेफिनेटली सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर चेंज हो रहा है, +4 से +6, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है फॉर 1 सल्फ़र डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. फर्दर बैलेंसिंग तो ऑब्वियसली की जा सकती है. CrO4 2- को एसिडिफाई करने पर ये Cr2O7 2- में कन्वर्ट होता है डाइक्रोमेट आयन में. हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता. इसी तरह से आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शंस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में होता है. इस बारे में हम श्योर हैं. कमिंग टू 17th क्वेश्चन. द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF ऑफ अ सेल इज गिवन बाय. टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है dE/dt. नाउ वी नो दैट डेल्टा G0 is -NF/E0, which is also written as delta H0 minus T delta S0. ठीक है, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि E0 वर्सेस टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो एक स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है. E0 वर्सेस टेम्परेचर एक लीनियर ग्राफ बनने वाला है, और जब ग्राफ लीनियर बनता है
तो डी ई बाई डी टी या डी ई नॉट बाई डी टी को सिंपली E2 माइनस ई वन अपॉन T2 माइनस T1 तो कह ही सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ के स्लोप के लिए। मोर ओवर अगर मैं स्लोप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके फाइंड करूं तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है, अपन को सिंपली डेल्टा एस नॉट बाय एन एफ मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो डेल्टा एस नॉट बाय एन एफ है इसकी वैल्यू अगर हम लिखने की कोशिश करें इस वाली इक्वेशन से, आप देखिए ई नॉट है माइनस डेल्टा एच नॉट बाय एन एफ प्लस डेल्टा एस नॉट बाय एन एफ टाइम्स टी। इस वाली इक्वेशन से अगर अपन लिखें तो डेल्टा एस नॉट बाय एन एफ की वैल्यू आ सकती है ई नॉट प्लस डेल्टा एच नॉट बाय एन एफ टाइम्स 1 बाय टी। ये वाली वैल्यू इसके भी बराबर है। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो एक ऑप्शन में डेल्टा ई डी ई बाई डी टी ये दिया हुआ है, एक ऑप्शन में डी ई बाई डी टी इस तरह से दिया हुआ है, एक ऑप्शन में डी ई नॉट बाई डी टी इस तरह से दिया हुआ है। तीनों ही चीज़ें हमें ऑप्शंस में नज़र आती हैं, इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट तीनों ही तरीक़ों से लिख सकते हैं। आंसर होगा डी। गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने की कोशिश की गई है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ऑब्वियसली क्लोराइड आयन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा AlCl3 के द्वारा और एक कार्बोकेटायन बनेगा। फर्स्ट इंस्टेंस में बनने वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन फिर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगी। जब भी कार्बोकेटायन बने तो आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना ही चाहिए। अगर एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है तो डेफिनेटली रीअरेंजमेंट होगा। और फिर ये जो कार्बोकेटायन है ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के रिंग पर अटैक करेगा और ये अटैक जो है वो पैरा पोजीशन पर होना चाहिए। बल्कि ग्रुप को देखते हुए अटैक डेफिनेटली पैरा पोजीशन पर होना चाहिए। तो पैरा टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। लुक एट द ऑप्शंस, यू कैन सी द आंसर इन सेकेंड ऑप्शन। तो आंसर होगा बी। कमिंग टू 19th क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स फाइंड करने हैं। क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि NaCl जो है वो FCC क्रिस्टल बनाता है जिसमें 4 फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड पर यूनिट सेल, राइट। अब ये जो मास है इससे हम नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पहले फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैसे मिलेगा, उसके लिए पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करें। NaCl का मोलर मास 58.5 ग्राम्स पर मोल। फिर मोल्स को अवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करें 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स पर मोल। और फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स फाइंड करने के लिए इस नंबर को 4 से डिवाइड करें, क्योंकि 4 फॉर्मूला यूनिट्स एक यूनिट सेल में है। इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स का 1/4 है। 1/4 ऑफ 6.02 अपॉन 58.5 इंटू 10⁻23। इसको आगे बढ़ाएं तो ये वैल्यू अपन को 300/117 इंटू 10⁻21 के फॉर्म में मिलती है। इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू वेरी नियरली 2.57 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल्स आती है। और ये है फर्स्ट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन, आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। वी कैन सी दैट द कंपाउंड्स आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट compounds of nickel and platinum in all the 4 cases. Stability of compound depends on the oxidation state. Which compound is more stable depends on the oxidation state of the metal, strength of ligand, how strong the ligand is, and
coordination number around the metal ion. Higher the coordination number, higher is the stability. यहाँ पर जो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जा रही है वो ये है कि Ni2+ is more stable than Pt2+. Nickel is more stable in its +2 cationic form. On the other hand, platinum is more stable in its +4 cationic form. So we want platinum to be in +4 cationic form and nickel to be in +2 cationic form. This can be observed in the third option. थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए. उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा ही मिल रहा है, 6 and 4 मिल रहा है. यहाँ पर 4 and 4 मिल रहा है तो इसको तो रूल आउट करेंगे. यहाँ पर तो 2 and 2 मिल रहा है, इसको भी रूल आउट करेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होना चाहिए. वो सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखी जाएँ तो थर्ड ऑप्शन में कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल है. कमिंग टू 21st क्वेश्चन. Spherical balloon of 21 centimeter diameter is to be filled with hydrogen gas at NTP from cylinder containing the gas at 20 atmosphere at 27 degrees Celsius. The cylinder can hold 2.82 liters of water at NTP. Calculate the number of balloons that can be filled up. तो 21 centimeter diameter के कितने balloons fill किए जा सकते हैं ये हमें find करना है. और ये हम number of moles के ज़रिए find कर सकते हैं. NTP का मतलब यहाँ पर लिया जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर. और हम जानते हैं कि 1 मोल आइडियल गैस NTP पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर्स. सबसे पहले फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ बलून. एक बलून का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. पाई इज 22/7, R इज 21/2 का क्यूब. ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब में. आप देख सकते हैं एक 21 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. इसके बाद भी हमारे पास 2 21 बचेंगे. नीचे 8 आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, जो कि फाइनली बन जाएगा 11 × 4 41 सेंटीमीटर क्यूब. राइट. और इसको अब मैं लीटर में बदल देता हूँ. 11 × 0.441 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो हो गया वॉल्यूम. अब अपन को इसको बदलना है मोल्स में. मोल्स ऑफ गैस दैट कैन बी फिल्ड इन अ सिंगल बैलून. तो हमें पता है कि 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम तो 22.4 लीटर्स है. तो 1 लीटर में मोल्स होंगे 1/22.4. तो जो अपने पास वॉल्यूम है उसमें कितने मोल्स होंगे उसके लिए अपन को 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा. ये वैल्यू लगभग 0.22 मोल्स आएगी एवैल्यूएट करने पर. इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो सिलेंडर में है वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं. उसके लिए अपन अप्लाई करते हैं PV/RT. Pressure inside the cylinder is given to be 20 atmosphere. Volume is 2.82 liters. Right. R की वैल्यू रफली 0.082 और टेम्परेचर है 300. यहाँ से अपन को मोल्स मिल रहे हैं. इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. आप देखेंगे 0.94 अपॉन 0.41 आता है जो कि 2.29 मोल्स है. तो मोल्स ऑफ गैस जो सिलेंडर में भरे जा सकते हैं वो 2.29 है. मोल्स ऑफ गैस जो एक बलून में भरे जा सकते हैं वो 0.22 मोल्स हैं. तो नंबर ऑफ बलून्स कितने फिल किए जा सकते हैं, जितने मोल्स ऑफ गैस हमारे पास टोटल है अपॉन जितने मोल्स ऑफ गैस एक बैलून में आ सकती है. तो ये वैल्यू जो है वो रफली 10.5 आती है. अब डेफिनेटली फ्रैक्शनल नंबर ऑफ बलून्स तो अपन भरेंगे नहीं. इसका मतलब अपन 10 बलून्स कंप्लीटली फिल कर सकते हैं. 10 balloons can be filled completely. We are not going to fill half a balloon. We are going to completely fill the balloon, and 10 such balloons can be completely filled.
21st का आंसर 10. 22nd question. How many moles of Grignard reagent will consume when it reacts with the following compound? तो Grignard reagent कितने moles consume हो जाएगा? RMgX. तो यहाँ पर R माइनस जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा ही, एल्कोहल का हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और SH ग्रुप का हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा. साइनाइड वाले ग्रुप पर अटैक होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होंगे. एल्डिहाइड ग्रुप पर भी अटैक होगा, कार्बोनिल ग्रुप पर भी अटैक होगा, कार्बोनिल क्लोराइड पर भी अटैक होगा और एस्टर पर भी अटैक होगा. ऐसा होने के बाद एस्टर से ये OET ग्रुप रिमूव हो जाएगा और OET ग्रुप रिमूव होने के बाद एस्टर एसीटोन में बदल जाएगा. उसके बाद इस पर एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक हो सकता है. सिमिलरली एसिड क्लोराइड ग्रुप से भी जब क्लोराइड रिमूव हो जाएगा और कीटोन बन जाएगा तो एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्पीशीज़ अटैक कर सकता है. तो इन टोटल कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मूला यूनिट्स या मोल्स कंज्यूम हो सकते हैं इस सबस्ट्रेट का एक मोल लेने पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर कंज्यूम हो सकता है. ठीक है ना, आंसर होगा 8. कमिंग टू 23rd क्वेश्चन. 0.56 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन was treated with oxalic acid to give CaC2O4. The precipitate decolorized 45 ml of 0.2 normal KMnO4 in acid solution. Calculate the percentage of CaO in the stone. तो लाइमस्टोन तो बेसिकली CaCO3 होता है. इसकी रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से कराई H2C2O4 से, प्रोडक्ट बना CaC2O4 जो कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, साथ साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी. और CaC2O4 को फिर वाटर में डिज़ोल्व किया. यहाँ से अपन को ऑब्टेन हुए ऑक्जिलेट आयंस. ऑक्जिलेट आयंस की परमैंगनेट आयंस के साथ रिएक्शन कराई एसिडिक मीडियम में. ऐसा होने पर परमैंगनेट तो Mn2+ में कन्वर्ट हो गया, ऑक्जिलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. इसके बाद जब हम इसको बैलेंस करने गए, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने गए, तो हमें ऑक्जिलेट के आगे 5, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 10, परमैंगनेट के आगे 2 और Mn2+ के आगे भी 2 लगाना पड़ा. आप ये भी देखिए कि परमैंगनेट आयन 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है. नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदल लेते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन. नॉर्मेलिटी इज n फैक्टर टाइम्स मोलैरिटी. तो यहाँ से अपन को मोलैरिटी मिल जाएगी नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर. नॉर्मेलिटी इज 0.2, n फैक्टर इज 5, तो मोलैरिटी मिल रही है 0.04 मोलर. अब इससे अपन प्रोसीड करते हैं. मोल्स ऑफ ऑक्जिलेट डिवाइडेड बाय 5 इज मोल्स ऑफ परमैंगनेट डिवाइडेड बाय 2. ये कोफिशिएंट्स देखकर हम लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ से मुझे मोल्स ऑफ ऑक्जिलेट मिल जाएंगे 5/2 टाइम्स मोल्स ऑफ परमैंगनेट. परमैंगनेट की मोलैरिटी 0.04 है और वॉल्यूम 45 ml है. 0.04 45 ml. यहाँ से अगर अपन प्रोसीड करें तो 4.5 मिलीमोल ऑक्जिलेट आयंस के मिल रहे हैं. और जितने मिलीमोल्स ऑक्जिलेट आयंस के हैं उतने ही मिलीमोल्स CaC2O4 के बने होंगे और उतने ही मिलीमोल्स CaO के भी माने जा सकते हैं ओरिजिनल सैंपल में, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से. ठीक है, अब अपन मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड कर सकते हैं इस डेटा से. कैल्शियम ऑक्साइड, जबकि अपने पास पूरा सैंपल 0.56 ग्राम का है, तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड करने के लिए उसके मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया. फिर अपन ने पूरे सैंपल के मास से डिवाइड किया
और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने पर आप देखेंगे फाइनली वैल्यू 45% आएगी। कैल्शियम ऑक्साइड का मास परसेंटेज सैंपल में 45% है। इस क्वेश्चन का आंसर 45। कमिंग टू 24th क्वेश्चन, फाइनल प्रोडक्ट ए के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं? सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है तो ये वाला H+ भी एक्सट्रैक्ट करेगा और इस वाले कार्बोनिल ग्रुप पर भी अटैक करेगा। बाद में अपन प्रोटोनेशन कर रहे हैं, प्रोटोनेशन करने के बाद अपन को अल्कोहल मिल जाएगा, CHOH 1 2 3 कार्बन्स और मिल जाएंगे। फिर अपन इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। जो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। बेंजाइलिक पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा, इस तरह से ऑब्टेन होगा। फिर आप देखिए कि जो डबल बॉन्ड है उसके कार्बन्स पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, और जब डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। यहाँ पर टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन पाएंगे, क्योंकि दोनों ही डबल बॉन्ड्स के अबाउट अपन सिस फॉर्म भी ले सकते हैं, दोनों के अबाउट ट्रांस फॉर्म भी ले सकते हैं, एक के अबाउट सिस एक के अबाउट ट्रांस भी ले सकते हैं, एक के अबाउट ट्रांस एक के अबाउट सिस भी ले सकते हैं। ये 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। 24th का आंसर 4। हाउ मैनी ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव मोर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन? लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी तो अपने ग्रुप में सबसे कम होती है, उसके बाद बोरॉन का ही नंबर लगता है। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2s लेवल में से निकलता है इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नियॉन की होगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स जो हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से भी ज़्यादा है। तो 25th क्वेश्चन का आंसर 6। So that's it about today's test paper. Today's test paper I found to be a little bit challenging, not very easy. There are enough number of challenging questions. I will say that if you are scoring 65 plus in this test paper, then your score is pretty good. Although you should not be scoring below 50 in any case, क्योंकि क्वेश्चंस हैं स्कोर करने लायक भी क्वेश्चंस हैं। 50 से नीचे तो नहीं जाना है। बिलो 50 इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी अकॉर्डिंग टू मी फॉर अ वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट। स्कोर शुड बी in excess of 60, 65, 70, right? But still, it was a challenging test paper and I enjoyed discussing it with you. Let's meet again in some other test paper discussion. Till then, take care and keep working hard. Thank you. Students, my